Kindly, I welcome our respected VC sir for the opinion for today program. So please come on the line. Our respected VC sir, Dr. Mohammad Javed sir. Please come, sir. Okay. Dear participants, as you know that we are going to organize a webinar on women empowerment and different aspect of safety. So today I will congratulate to Miss Samriddhi Tyagi, who is the key speaker for this event. So first of all, you will listen them. I will also say something about the women empowerment and its safety. G.D. Anderson says the feminism is not about making the women strong. Women are already strong. It's about changing the way the world perceives that strength. Sadly, for many people, feminism has came to mean being anti-man and feminists. The feminist women empowerment and women's safety are about ensuring dignity, health, and happiness of women and to assert the equality and human rights. Earlier in India, the women suffered abuse in the name of culture, but women just want to be the master of their own life. The greatest tool of women empowerment is education of girls and women, so they become better aware of their rights and can make better choices. Education establishes a career and become financially independent. Education to help them realize when they are being wronged and to prompt against it. I share to the Malala Yousafzai, I raise up my voice not so I can shout, but so that those without a voice can be heard. Empowerment and safety means I am not a slave. Nobody owns me. I have free will. I have right to life, happiness, health, and dignity. As much as my man, as any man, I am my own master. I shall live as I choose. Women want the liberty to choose and the power to follow their own choice. The women empowerment principles in brief, first of all, establish a high-level corporate leadership for gender equality, treat all women and men fairly at work, respect and support human rights, and no discrimination, ensure the health, safety, and well-being of all women and men workers, promote the education, training, and professional development for women, implement enterprise development, supply chain, and marketing practices that empower the women, promote the equality through community initiatives and advocacy, measure and publicly report on progress to achieve gender equality. About this, the principle first about empowerment. One, the leadership promotes gender equality. Number two, equal opportunity, inclusion, and non-discrimination. Number third, healthy, safety, and freedom from violence. Number four, education and training. Number five, enterprises, development,
supply chain, and maintaining the practices. Number 6, community leadership and engagement. Number 7, transparency, measuring and reporting. These are the facts of women empowerment, and there are several laws made by Indian government for their safety, but needs that will be implemented honestly for empowerment and her safety. These are the things which are important to establish the women empowered and sure for good nation and for good future. Thank you. Hello. Dr. Somadas. Hello. Yes, ma'am. Yes. Yes, sir. Thank you so much, sir, for enlightening us with your valuable thoughts. Now this is over to Amit Chaudhary. Amit Chaudhary, Thank sir, you, please. ma'am. So special welcome our chief guest today, Miss Samriddhi Tyagi, senior psychologist, chairperson of Sanskar Education Foundation. So today, welcome our university and for the some valuable suggestions and valuable advising of the women empowerment and different aspect of the women's safety. So I hardly welcome Miss Samriddhi Tyagi ma'am, please come on the line and please talk about the valuable suggestions of Mission Shakti program phase 3rd. Please, ma'am, come. Thank you very much. Am I audible? Yes, ma'am. You are audible very well. Okay. Thank you. So first of all, I would like to extend my heartfelt gratitude to the university for organizing such a valuable program. This is the need of the hour. And as Dr. Amit Chaudhary ji and Dr. Soma Das has already said, Welcome, ma'am. Welcome, ma'am. I am 100%, I second the opinion of the Vice Chancellor, sir, that there are certain dimensions that we need to touch as far as women's safety and women empowerment is concerned. He has put forth, in a very nutshell, he has put forth all the important points. But being a counselor and having interacted with a number of women who have suffered from domestic violence, who have suffered from physical assault, I would like to share, because all of us know about the law. हम सबको पता है कि लॉ है और लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से भारत में तो कम से कम डेमोक्रेटिक नेशन है, तो महिलाओं के और पुरुषों के साथ दोनों के साथ खड़ा है। जो सही है उसको यहाँ पर जरूर सुना भी जाता है और उसके साथ जस्टिस किया जाता है। The main thing which I have come across is that there is little awareness about women's safety and various dimensions of women's safety. सबसे पहले बात करेंगे कि क्यों होता है डोमेस्टिक वायलेंस या किसी भी तरह का वायलेंस जो होगा, उसके पीछे आधार क्या है। आधार क्या है कि बायोलॉजिकल, कई बार ड्रग एडिक्ट है कोई, या कोई इंटॉक्सिकेटेड है, तो ऐसे भी जब आदमी के अंदर सेंसेस नहीं है तो क्या करेगा, वो किसी तरह का वायलेंस करेगा। डोमेस्टिक वायलेंस का भी एक सबसे बड़ा कारण हम देखते हैं कि पति शराबी है, शराब पीता है तो घर आएगा, आर्थिक स्थिति खराब होगी, पत्नी के साथ दुराचार करेगा या उसके साथ मारपीट करेगा। दूसरा, अगर आप देखें तो सोशल कल्चरल वैल्यूज, हमारी सोसाइटी में ऐसी सोशल कल्चरल वैल्यूज हैं जहां पर हमेशा से औरत बराबर है, समान अधिकार दिए गए हैं, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि उसकी जो ओपिनियन है वो सेकेंडरी है। Priority must be given to the male head in the family. Decisions must be taken by the male head. इसके अलावा जो फैक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं वो सिचुएशनल, जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। सिचुएशनल कैसे? बहुत सारे, एक सर्वे किया गया दिल्ली गवर्नमेंट की साइड से और उसमें ये पाया गया
कि महिलाएं वहां सबसे ज्यादा अनसेफ महसूस कर रही हैं जहां पर गली में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है या आइसोलेटेड स्ट्रीट है ना। तो ऐसी जगह जहां पर आइसोलेशन है, जहां पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, जहां से महिलाओं का आना जाना है और कुछ असोशल एलिमेंट्स वहां हैं, तो ऐसी जगह पर औरत के साथ देखा गया है कि जैसे बस में ट्रेवल कर रही है जनरली, तो बस में ट्रेवल करते वक्त मान लीजिए उसके साथ कुछ ऐसी ईव टीजिंग या इस तरह की कोई घटना हो जाती है, तो ऐसा माना गया कि क्राउडेड प्लेसेस पर या जो आइसोलेटेड एकदम से प्लेसेस है जहां पर स्ट्रीट लाइट वगैरह की सुविधा नहीं है, वहां पर महिलाओं के साथ इस तरह की परेशानी देखी गई है। तो सिचुएशनल भी हुआ, और ये हमेशा जितने भी फैक्टर्स हैं ये ओवरलैपिंग में है। मान लीजिए एक आदमी टॉक्सिकेटेड भी है और ऐसी जगह पर है आइसोलेटेड किसी स्ट्रीट में जहां पर कोई महिला जा रही है, तो ये फैक्टर्स क्या है, ओवरलैपिंग में है। इन सब के बारे में हम सब लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। समस्या कहाँ से आ रही है? समस्या आ रही है कि हम तब ध्यान दे रहे हैं महिलाओं के ऊपर जो भी दुराचार हो रहा है या जो भी इस तरह से उनकी डिग्निटी को हार्म किया जा रहा है, जब वो सिचुएशन हो जा रही है। मतलब किसी महिला के साथ कोई प्रकरण हो गया तो उसके ऊपर ध्यान दिया गया। पहले से क्या प्रिकॉशन रखी जानी चाहिए, वास्तव में काम करना उसके ऊपर जरूरी है। और मैंने ये देखा है अभी भी, जबकि आई वुड लाइक टू थैंक द यूपी गवर्नमेंट। हम जैसे लोगों को तो पता ही नहीं था एंटी रोमियो एक्ट भी कुछ होता है। इन आवर टाइम्स अगर लड़की स्कूल से घर जा रही है और 4 लड़के बाइक पर उसके पीछे हैं, तो लगता था इट इज द नॉर्म ऑफ द सोसाइटी कि आप बाहर निकलोगे तो आपके पीछे कुछ ऐसा होगा ही कि कोई चलेगा या कोई ऐसी छिटाकशी करेगा, तो तुम खुद को संभालो, दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। बट थैंकफुली a few years back Yogi Adityanath ji introduced this anti-Romeo act that this is asocial. You cannot harass a girl walking down the street just out of fun, क्योंकि उसका बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ रहा है उस बच्ची के दिमाग पर। हो सकता है वो डर कर स्कूल जाना भी बंद करते, और ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं। मैं जब भी महिला शक्ति कार्यक्रम में जाती हूँ, कोई भी डीएम के साथ कहीं मीटिंग होती है, तो छोटी छोटी लड़कियां जो स्कूल गोइंग है वो कहती है कि वी आर फियरफुल, वी आर अफ्रेड अटेंडिंग आवर कोचिंग्स। व्हाई? बिकॉज देयर आर asocial elements standing in groups and they pass comments, so we are afraid. What should we do? तो ऐसे में जो एक चीज मुझे हमेशा से महसूस हुई वो ये कि अवेयरनेस की कमी है और ओपनिंग की कमी है। हम लड़की के माँ बाप जब बन जाते हैं तो डिसिप्लिन तो उस घर में आ जाता है, लेकिन कभी भी बैठकर अपने बच्चे को प्रैक्टिकल चीजें बताइए, क्योंकि वो घर के अंदर नहीं रहेगी, हमेशा घर के बाहर निकलेगी। तो जब आप घर के बाहर निकलेंगे, क्या क्या मेजर्स आपको लेने चाहिए, कैसी सिचुएशंस आ सकती है तो उनका सामना कैसे करना है। आपको कोई भी सिचुएशन आए, आपको किसी अपने फ्रेंड को या घर में एक ट्रस्टवर्दी ऐसा आदमी होना चाहिए जिसको आप बताएं जरूर कि मुझे, मैं ये नोटिस कर रही हूँ। Sorry to say, but 80% of the crime against young girls, or I should say women, are from the people they know very well. कोई बाहर से दूसरे किसी फॉरेन लैंड से आकर नहीं कर रहा है, वही लोग हैं इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व जिनको वो बच्ची पहले से जानती थी। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रही हूँ। टीनेज होती है बच्चों की, लड़कियों की, और आपकी बेटियां कह रही है कि मम्मी ये अंकल आते हैं और आई एम नॉट कंफर्टेबल अराउंड हिम। आप कह रहे हो अरे अंकल को आकर नमस्ते तो करो, पानी का ग्लास तो दो। बहुत छोटा एग्जांपल है, बट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स सफर फ्रॉम इट कि कोई अंकल आए घर परिवार के रिश्तेदारी से और कहा गया कि पानी लेकर आओ बेटा, नमस्ते तो करो। एंड you need to sense it कि my daughter or my sister is not comfortable around this particular man. तो वो कह रही है नहीं मुझे नहीं जाना, या मैं पढ़ रही हूँ। पर हमारे यहाँ क्या है कल्चर कि नहीं, आपको आना है, नमस्ते करनी है, पानी भी पकड़ाइए। पता चल रहा है कि वो वही हैरेस हो रही है, उसी आदमी के आसपास में वो कंफर्टेबल नहीं है। तो अब बच्चा हिचक रहा है बताने से, और आप उसको सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हो, आप भी सेंस नहीं कर पा रहे हो, और बाद में जाकर वो क्या हो जाता है, एक क्राइम के रूप में तब्दील हो जाता है। एक सर्वे में और पाया गया कि इट वाज अ सर्वे कंडक्टेड ऑन
द रेपिस्ट्स, उनके ऊपर, उनकी साइकोलॉजी के ऊपर, कि ऐसा क्या हुआ कि आपने उसी महिला को चुना इस क्राइम के लिए, इस हीनियस क्राइम के लिए। तो उन्होंने कहा मैंने उस महिला को या उस लड़की को दब्बू पाया, मुझे लगा कि ये लड़की बोलेगी नहीं, ये चुप रह जाएगी। तो ऐसे जो सर्वे हैं, ऐसी जो बातें, इनको ध्यान में रखकर और उसके लिए बेटियों को, अपने बच्चों को तैयार करना है कि आपको दब्बू नहीं बनना है। दब्बू कैसे नहीं बनना है? यू मस्ट शेयर योर एक्सपीरियंसेस, योर आइडियाज, वेदर यू आर कंफर्टेबल अराउंड समबडी और वेदर यू आर अनकंफर्टेबल अराउंड समबडी, यू डोंट लाइक अ पर्सन, से इट स्ट्रेट फॉरवर्ड। वही गुड टच बैड टच, हम तो उसको भी खुल के नहीं बोल पाते भी। तो अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयरनेस की जरूरत और क्यों है? मैक्सिमम केसेस में तो महिला को पता ही नहीं चलता है कि उसके साथ किसी तरह का वायलेंस हो रहा है। हम में से कितने लोग, सभी लोग बात करते हैं। एक दौर था, मैं एक केस के दौरान किसी महिला से मिली काउंसलिंग के लिए, तो उन्होंने कहा कि बात चल रही थी, ससुराल पक्ष में बैठा हुआ था, तो जब वो बात बताने लगी तो पूछा गया कि अरे कोई तुम्हें मारा किसी ने, बाल फाड़े? तो जब मारा नहीं तो काहे का वायलेंस हुआ? अब आप समझिए कि यहाँ पर वायलेंस की परिभाषा भी क्या है, दैट इट शुड बी फिजिकल वायलेंस टू बी एडमिटेड। ये कहने के लिए भी कि वायलेंस है तो ये फिजिकल होना चाहिए। अगर किसी ने तमाचा मारा हो, हाथ पकड़कर घर के बाहर किया हो तो वायलेंस है। लेकिन हमारा जो कंटिन्यूअस एक बच्चे का जो दूसरे के घर में गया है शादी होकर, उसका जो इमोशनल टॉर्चर उसके साथ हो रहा है ना, इमोशनल अब्यूज जो हो रही है उसके साथ, साइकोलॉजिकल अब्यूज जो हो रही है, इकोनॉमिक अब्यूज जो हो रही है। इकोनॉमिक को तो हम यहाँ पर इंडियन सोसाइटी में मैक्सिमम केसेस में आप देखें तो एक्नॉलेज ही नहीं करते कि इकोनॉमिक वायलेंस भी होती है। हम बहुत कम बात करते हैं। आप एक आदमी को कंट्रोल कैसे करोगे? ऊंची आवाज से और पैसे से भी करा जाता है कंट्रोल इंसान को, कि आप उसको जरूरत के पैसे नहीं दोगे। अगर वो घर जाने के लिए कह रही तो जाओ, किराया नहीं दूंगा, है ना, सामान जितना चाहिए उससे कम दूंगा, या अपने घर से लाओ, मैं तुम्हें पैसे देने का अधिकारी नहीं हूँ, तुम्हारा बाप तुम्हारा खर्च उठाएगा। तो दैट इज एन इकोनॉमिक वायलेंस। या फिर कई केसेस पर ये पाया गया कि महिला कमाती है लेकिन अपनी पूरी सैलरी अपने घर पर देगी। अगर वो स्वेच्छा से हो रहा है तो कोई बुराई नहीं है, इफ हर नीड्स आर मेट एंड शी इज हैप्पी डूइंग सो। लेकिन अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे एक एक पैसा लिया जा रहा है उसकी कमाई का, then it is an economic violence. But how many of us acknowledge it? We seldom acknowledge that there is something called economic violence. तो अवेयरनेस की तो बहुत ज्यादा कमी है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों के लिए, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, उनके लिए इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें जहां उनको ये बताया जाए कि कितनी तरह की वायलेंस आपके प्रति हो सकती है और आपको उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। जैसे अभी एक केस आया एक मीटिंग में मिशन शक्ति की, लड़कियों ने कहा जो कॉलेज गोइंग थी कि हमारे स्कूल के ही कुछ बच्चे खड़े होकर छीटाकशी करते हैं। अब वो बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो गवर्नमेंट तो कहती है कि आप 112 पर कॉल कीजिए, आप 1090 पर कॉल कीजिए, लेकिन एक चीज जो हमें और अपने बच्चों को समझानी पड़ेगी, दैट व्हाट इज हार्मलेस और व्हाट इज हार्मफुल फॉर यू। तो मिसयूज भी नहीं होना चाहिए और उनको एक समझ भी देनी चाहिए कि क्या आपके लिए हार्मफुल है और क्या हार्मलेस है। ये भी क्योंकि कुछ ऐसे भी अभी बातें आ रही हैं सामने जहां पर राइट्स का भी मिसयूज किया जा रहा है जिस जगह पर करने की जरूरत नहीं थी। तो सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस। ऐसे कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमें शुरू करने चाहिए जहां पर हम माता पिता को बिठाकर पेरेंटिंग वर्कशॉप्स आदि ऑर्गेनाइज करके और बच्चियों को भी समझाएं कितनी तरह का वायलेंस होता है, कैसे आपके साथ किसी तरह का दुराचार, किस तरह का अनवांटेड बिहेवियर हो सकता है और उस केस में आपको क्या करना चाहिए। दूसरा जो है वो है इंफॉर्मेशन। अवेयरनेस हो गई है, अवेयरनेस बच्चे को आपने दे दी, अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कई बार
बच्चे को पता नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और वो जब तक एक बड़ा रूप नहीं ले लेता। अवेयरनेस जरूरी है, अवेयरनेस के बाद जरूरी है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसी? that how does the law of this country, how does the administration, police department and other social welfare organizations support you and help you in the hour of need? कैसे, कौन कौन से ऐसे नंबर हैं, वो एक एक बच्चे की, एक एक लड़की की डायरी पर नोट होने चाहिए। अगर आप रात में निकल रही हैं एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल, डायल 112. A lady police officer will come in the van and escort you to your home. If somebody is calling you and harassing you over phone, or if somebody is after you and you're caught up because of that, call 1090. अगर कोई चाइल्ड के प्रति कोई क्राइम हो रहा है तो उसमें भी आप एक नंबर जरूर डायल करें। वन स्टॉप सेंटर्स हैं महिलाओं की हर तरह की समस्या के लिए, तो वन स्टॉप सेंटर्स पर जाएं। तो पूरा जो कानूनी प्रोसीजर भी है, या जो मदद मांगने का एक तरीका है, किस डिपार्टमेंट में जाएं, कहाँ कॉल करें, ये सब हर एक लड़की को पता होना चाहिए, डायरी पर नोट होना चाहिए। हर एक स्कूल का, हर एक कॉलेज का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जहां वो काम कर रही है, उसका ये एक होना चाहिए उसके दिमाग में कि भाई एक एक लेटर तो या एक पैम्पलेट तो बच्चों के पास ऐसा हो, कैंडिडेट्स के पास ऐसा हो, जहां पर वो अपनी जरूरत के समय पर इसको इस्तेमाल करके हेल्प ले सके। इंफॉर्मेशन की बहुत जरूरत है, और इंफॉर्मेशन होने के बाद और किस चीज की जरूरत है जहां हम लैक कर रहे हैं, वो है करेज। करेज क्यों नहीं है? मैं कई बार देखती हूँ, 2 लड़कियां हैं बस में, एक लड़की के साथ सेम वही बदतमीजी एक लड़के ने की, छेड़ा, और वो चुपचाप घर आ गई। समाज क्या कहेगा? बड़ी अच्छी लड़की है, सीधी जाती है सीधी आती है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, वो पिस रही है। आधी तो इसलिए पिसती है कि अगर आपने घर में एक बार बता दिया तो आपका कॉलेज जाना ही छुड़वा देंगे। और अगर एक लड़की उसका सामना कर जाए वहां पर और उसको धमका दे कि नहीं ऐसा नहीं करना है, तो जो समाज का जो परसेप्शन है, सॉरी टू से बट इट हैपेंस इन रूरल बेल्ट्स most of the time. I am not talking about metropolitan cities. I have seen the girls there, they are courageous and they are above these taboos nowadays. But in the rural belt we often see कि लड़की के साथ ऐसा हो रहा है but she will keep quiet कि लोग क्या कहेंगे। मतलब जो बर्दाश्त कर रही है इस तरह की चीजों को, और जो अपनी डिग्निटी पर आँच आने दे रही है, बोल नहीं रही है, चुप है, उसको कहा जाएगा that she is disciplined, well cultured, she'd never face any problem. It doesn't happen that she'd never face any problem. It is like she's not courageous enough to stand for herself. She lacks in guts. और एक लड़की जो guts लिए बैठी है, जिसने कहा वो हिम्मत वाली है, लेकिन उसको हम क्या करेंगे? We'll point fingers at her. So it is our fault as a society. We must support the girls for raising voice for their rights. ऐसे में सपोर्ट कीजिए उसे। कुछ गलत हुआ है, ठीक है, यू सिट हियर, आप वहां मत बैठिए, आप इधर बैठिए, है ना, और मामले को सुलझाने की कोशिश करें। तो इंफॉर्मेशन के बाद करेज होना भी जरूरी है। महिलाएं बहुत बर्दाश्त करती हैं। अभी मैं फेसबुक पर बहुत कुछ देखती हूँ कि लड़कियां तो भाई घर में फोन कर रही हैं। आज भी आई केम अक्रॉस सच अ थिंग कि लड़कियों का घर इसलिए टूट रहा है क्योंकि वो घर पे फोन करती हैं, अपने ज्यादा बात करती हैं। बहुत सारे घर शायद बन भी इसीलिए रहे हो कि घर वाले कह रहे हैं नहीं नहीं 2 दिन और रहकर देखो, 4 दिन और रहकर देखो। तो कई बार हमें कहना पड़ता है फिर कि जब एक लड़की फोन करने से घर तोड़ सकती है तो आप पूरा परिवार एक तरफ है, आप परिवार जोड़कर क्यों नहीं रख सकते हैं? आप तो उसके साथ ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, तो उसको तो आपका बहू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी भी क्या करेज नहीं है लड़कियों के अंदर, क्योंकि अभी तक ये एक टैबू है कि कोई लड़की पुलिस स्टेशन पर दिखनी नहीं चाहिए। 1090 भी इसलिए सफल है क्योंकि वहां एक लड़की की जो आइडेंटिटी है उसको छुपा कर रखा जाता है, इसलिए दे फील कॉन्फिडेंट, दे कॉल एट वंस। कुछ भी परेशानी में 1090 का रिस्पॉन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एकदम से कॉल जाएगी। तो वहां वो खुश है कि चलो आइडेंटिटी हमारी छुपाई जा रही है। 112 पर भी वो कॉल कर देती है और बहुत अच्छी सुविधा है 112 पर भी, तुरंत गाड़ी जाएगी, आपको मदद करेगी। कहीं पर भी 112 को आप कॉल कर दीजिए। तो
लड़कियों के अंदर करेज क्यों नहीं है? पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकती, अरे कहाँ जा रही हो? उन तहसील में नहीं जा सकती है, कहाँ जा रही हो? कोर्ट में नहीं देख सकती, अरे कहाँ जा रही हो? तो ये टैबूज है, ये फैसिलिटी है जो महिलाओं को मिली है और उनको इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए, एप्लीकेशन लिखना आना चाहिए, क्या लिखना है, क्या कानून है जो मेरे फेवर में है, और उसके बाद करेज होना चाहिए कि मैं वहां तक जाऊं और बात करके अपनी बात कह पाऊं। सपोर्ट ग्रुप्स की कमी है, जैसे हम विमेन सेल आजकल हर कॉलेज में है, आपके कॉलेज में भी है, हर एक कंपनी में इस तरह के विमेन ग्रीवेंसेस सेल है। मुझे लगता है हर बार अधिकार छीनना या ये वेट करना मेरे साथ कुछ गलत ही हो, वो जरूरी नहीं है। एक चीज जो मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ वो ये कि सपोर्ट ग्रुप्स की कमी है महिलाओं के पास। ऐसे कुछ ग्रुप्स की कमी है जहां पर वो बैठकर अपनी परेशानियों को साझा कर सकें। छोटी लड़कियों को अक्सर ऐसा लगता है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे साथ ही हो रहा है, बस वो मेरे किसी दोस्त के साथ या मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी मम्मी, ताई, चाची, बुआ, इनके साथ नहीं हुआ होगा, लोग मुझे जज करेंगे। तो अगर ऐसे घर के अंदर भी हम बैठकर इस तरह की महिलाओं के विरुद्ध जो हरकतें होती हैं उनके ऊपर अगर बात करें तो शी विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज what happens sometimes when you go out of your home for work, for education, and she will also come to know about the ways to deal with it. और वो टैबू नहीं रहेगा उसके लिए, वो उसको लगेगा नहीं कि मुझे जज करेंगे, क्योंकि उसको पता है कि ये अक्सर दूसरी महिलाओं के साथ भी किसी ना किसी दूसरी फॉर्म में हुआ है। तो हमें अपने घर में, अपने स्कूल में या कॉलेज में भी इस तरह की कुछ सपोर्ट ग्रुप बनाने चाहिए जहां एक टॉपिक रख दिया जाए, मान लीजिए ईव टीजिंग, और 10 लड़कियां आकर बैठी एंड दे शेयर देयर एक्सपीरियंस अबाउट ईव टीजिंग। तो क्या होगा, एक तो लड़कियों को पता चलेगा व्हाट आर द डिफरेंट sorts of eve teasing, how can it happen, what are the places where you can most expect it, what are the safety measures that you need to take। तो ये बहुत जरूरी है। एक और चीज जो हो सकती है वो I come to know that women are not well connected। जैसे पुरुष समाज में क्या है, लड़कों के समाज में, पुरुष भी तो सही है, उनका तो है ही, लेकिन लड़कों का भी क्या होता है, बहुत ही वेल कनेक्टेड होते हैं, स्ट्रांगली कनेक्टेड। 4 लड़के तो 4 दोस्त, तो दोस्त बहुत पक्के। लड़कियों में ऐसी दोस्ती होती है लेकिन सपोर्ट के मामले में नहीं होती उस तरह से। जैसे एक लड़के की लड़ाई हुई तो 4 चलेंगे लड़ने के लिए, है ऐसा। लेकिन लड़कियों के मामले में लड़कियों की समस्या केवल उसी तक रह जाएगी, वो अपनी 4 फ्रेंड्स को भी नहीं बता पाती मेरे साथ ये गलती हो गई है। अब तो हालांकि मैं देख रही हूँ कि लड़कियां बहुत बोल्ड हो गई हैं, पर फिर भी थोड़ी कमी है उसमें। तो लड़कियों की अगर समस्या में एक लड़की को रास्ते से जाते हुए परेशानी हो रही है और वो कहे कि यार मेरे साथ ऐसे ऐसे दिक्कत है और वहां मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और 4 लड़कियां हो, तो जो एक लड़की बात कह रही है अगर उसको 4 लड़की खड़े होकर वहां पूछ लेंगी तो असर कुछ और होगा। जैसे आई एम गिविंग यू अ वेरी फाइन एग्जांपल, वन ऑफ आवर कजिन्स इन आवर टीनेज days, she was the youngest one, so she got teased by a boy। वो उसको कुछ कहता होगा गली में चलते, तो उसने घर में जब 4 लड़कियां होती हैं और मान लीजिए उसने बड़ी सिस्टर से कहा ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लड़का, इसने मुझे ऐसे कहा। तो हमारी बड़ी बहन रास्ते मिली, उसने कहा इधर आना, सुनो जरा इधर, कि हाँ तो ऐसे कुछ कह रहा था कैसे भाई, और फिर उसने उसको इतना नॉर्मली लिया, उसने कहा बहन सॉरी, ऐसे नहीं कह रहा था, इसको गलतफहमी है। तो अगर लड़की खुद नहीं कह सकती है, और जरूरी नहीं हर बात में आप लड़े या थप्पड़ कोई जवाब है, हर एक चीज का, ये भी बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है कि हर एक चीज की एक डिग्री है। एक वो है जो आपकी क्लास में बैठकर आपको देख रहा है बच्चा, फ्लर्टियस है, अलग है, इट इज हार्मलेस। उसके लिए 112 को मत कॉल कीजिए, इट विल ruin his life or he will get depressed because of it if he is a good boy। एक बार जो सड़क पे खड़े होकर 4 खड़े हैं और रोज का उनका पैटर्न है, तो डिग्रीज में भी पता होना चाहिए लड़कियों को हमारे कि कहाँ क्या काम आएगा, कहाँ घर वालों को कहना काम आएगा, कहाँ क्लास टीचर को कहना है, क्लास टीचर से मदद लेनी है, कहाँ फ्रेंड से मदद लेनी है, कहाँ खुद सामने से जाकर कहना है। तो सपोर्ट ग्रुप और कनेक्शन
मतलब दे मस्ट बी वेल कनेक्टेड विद द सोसाइटी। वेब होना चाहिए लड़कियों के चारों तरफ जो उनको प्रोटेक्ट करे, और हर जगह जहां भी वो जाए वहां उनको एक ना एक सपोर्ट ऐसा मिल जाए। हर चीज का सॉल्यूशन पुलिस नहीं है, ये मैं फील कर गई हूँ। और हर एक क्राइम उतना हीनियस या इस तरह का नहीं है जिसको पहले ही नहीं रोका जा सकता है। तो लड़कियों को चाहिए कि वो वेल कनेक्टेड रहे, वेल इन्फॉर्म्ड रहे, अवेयर रहे, एंड दे मस्ट बी करेजियस। और सबसे बड़ी बात, उनके दिमाग से टैबूज हटने चाहिए कि आपके साथ जो हो रहा है वो आप ही के साथ हो रहा है, और आप ही की कोई गलती होगी तब हो रहा है। ये टैबू सबसे बड़ा टैबू है जिसके कारण लड़कियां बाहर नहीं निकल कर बोल पाती, ये हटना चाहिए बिल्कुल। और एक चीज जिसकी बहुत जरूरत है इस समाज को, वो है काउंसलिंग। ये जो इफेक्ट्स होते हैं ना, आई मस्ट से द एडवर्स इफेक्ट ऑफ गोइंग थ्रू सच अ सिचुएशन आर everlasting, like the impact, bad or good, whatever, remains throughout the life. अगर मुझे बस में चलते हुए किसी ने टीज कर दिया बचपन में, 9वीं 10वीं में 12वीं में, तो फिर मेरा एक डर वो बस के साथ बन गया, वो एक कनेक्शन बन गया, वो एक मेमोरी बन गई, बैड एक्सपीरियंस बन गया, और वो मुझे हमेशा डराएगा। तो अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हो, बच्चों को कहना चाहिए ऐसा कुछ हो, या आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। बहुत सारी लड़कियां एक बार शादी के बाद, शादी टूट जाए डोमेस्टिक वायलेंस से किसी भी तरह से, दे वर नॉट रेडी फॉर सेकंड मैरिज, और अगर वो रेडी हैं तो मैंने ये पाया है कि वो ज्यादातर क्या हो जाती है, दे कैरी दोज बिटर एक्सपीरियंसेस विद इन देम, कि आगे भी ऐसे होगा तो मैं इस बार तो ऐसे रहूंगी। तो किसी नए रिश्ते को शुरू करने का ये तो कोई तरीका नहीं बनता कि जो पीछे का एक्सपीरियंस है और बिटरनेस है वो आप आगे जाकर उड़ेल दो। तो इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा समय उन लड़कियों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में बेटर एक्सपीरियंसेस तो हैं उनके, पर दूसरे की तो गलती नहीं है, वहां क्यों रहने। तो क्या होता है कि पक कर जाती है कि नहीं ये आगे भी होगा तो मैं इसके लिए ऐसे तैयार हूँ। तो ऐसे में क्या काम करते हैं, काउंसलिंग काम करती है। हमारे शहरों में डिपार्टमेंट्स में काउंसलिंग सेंटर्स तो हैं, पर उनका सही तरीके से काम करना, और उसमें कॉलेज की फैकल्टीज जो इस तरह से, जिनका इंटरेस्ट है, जो समाज में जाती हैं बाहर, महिलाओं की समस्याओं को हैंडल करती हैं, वो वहाँ जरूर हफ्ते में 1 दिन दें, 2 दिन दें। और ऐसी महिलाओं को जिनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है और उसके बाद दे आर ट्रॉमेटाइज्ड और दे हैव सच बिटर एक्सपीरियंसेस, वो उनको क्या करें, वो काउंसिल करें, उनको तरीका बताए कि कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है, कैसे अपनी लाइफ को इस तरह के बिटर एक्सपीरियंसेस के बाद पे आप फ्रूटफुल बना सकते हो। तो लॉ एंड ऑर्डर इज वन थिंग, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता जो है, पहले तो आधी लड़कियां वहीं तक नहीं पहुंच पाती हैं, और जब वहां पहुंच भी जाती है उसके पास इतना सब कुछ इकट्ठा हो जाता है मन में कि वो उसके बाद का जो रास्ता है जीवन का, उसको तय करने में, या तो पूरा जीवन उनको she always carry that baggage of bitter experiences, and it is reflected in her behavior, in her conduct, and that is not a way to live life. Life is beautiful. Every girl is important to us. We feel really, it is a real pain to see that young girls, little girls are rape victims, and it is happening more and more in villages also nowadays. In rural belt, ये तो इतना क्लोजली वेब्ड सोसाइटी थी कि यहाँ कभी ऐसा सुनना तो क्या बहुत दूर की बात थी, गांव की बेटी तो गांव की बेटी है। लेकिन वहां तक भी अगर छोटे बच्चों के साथ ऐसे हीनियस क्राइम हो रहा है तो कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी हम फेल हैं। ऐसा हो ही क्योंकि हमारी महिलाओं के साथ ऐसा हो, बेटियों के साथ ऐसा हो, और वो अकेली थाने तक जा रही है, अपने लिए लड़ रही है, समाज में का उस पे रोल है। अभी एक छोटा सा और उदाहरण है, और इसका एक ही सॉल्यूशन है, जैसे वीसी सर ने भी कहा, and I completely agree with that. The only one solution to that is education and independence. अभी एक लड़की, she must be 33 or 34 years old. She was into the marriage for 10 years. और अभी जनवरी में 10 साल की शादी के बाद पहली बार
शी वॉज गोइंग टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड 31 जनवरी को, 24 को 27 को हस्बैंड एक्सपायर हो गए, 31 में बड़ा ऑपरेशन हुआ, बच्चा भी एक्सपायर हो गया, उसके बाद ससुर एक्सपायर हो गए 4 महीने बाद। लेकिन क्या हुआ, ससुर वसीयत में से बेदखल करके चले गए लड़की को। अब आप बताइए कि वो लड़की का जीवन क्या है जिसने 10 साल शादी में दिए और बच्चा भी एक्सपायर हो गया, पति भी चला गया 1 महीने के क्या 1 हफ्ते के अंदर अंदर, कितना ट्रॉमा होगा लाइफ में। और फिर ससुर ने क्या किया, ससुर भी एक्सपायर हो गए कोविड में, लेकिन वसीयत लिख कर गए हैं कि मैं इस लड़की को बेदखल कर रहा हूँ क्योंकि इसके घर वाले इसकी शादी करने के लिए कह रहे हैं। शुड दिस बी द वे? तो एज अ सोसाइटी तो हम फेल है फिर। अब कहाँ लड़े जाकर? तो लड़ाई का रास्ता उतना आसान नहीं होता है, तो कम से कम जो बहादुरी करके लड़ने को तैयार हो उस महिला को तो फाइनेंशियली, मोरली, हर एक तरह से तो एज अ सोसाइटी हमें सपोर्ट करना चाहिए। पहले तो हम ध्यान ही रखिए कि ऐसा नहीं हो। और इसमें एक रोल जो सबसे अब ऐसे में क्या काम कर सकता है और जो काम कर रहा है, दैट शी इज वेल क्वालिफाइड, शी इज MSc B.Ed एंड शी विल पिक अप अ जॉब। So this is the only hope she has. केवल अकेली जो एक आशा है उनके पास वो ये that I'm qualified and I'm not dependent on anybody. I can run my life on my own. I'll pick up a job. तो ये एक वेपन ऐसा है जो आपको हर तरह की इंडिपेंडेंस दिलवाएगा। आप इकोनॉमिकली भी इंडिपेंडेंट होंगे, यू कैन रेज योर वॉइस, यू नो हाउ टू अप्लाई द रूल्स एंड रेगुलेशंस, द लॉ एंड ऑर्डर, कैसे उसका यूज करें, और फिर आप समाज में एक बेहतर जगह खड़े भी हो सकते हैं, एक बेहतर जीवन जीने की आशा भी आपके मन में हो सकती है। तो दिस इज द ओनली वेपन जो महिलाओं के पास इस समय पर है और जो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हर एक बच्ची, हर एक घर से एक डिग्री जरूर ले, ग्रेजुएट जरूर हो और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयबल होने की कोशिश करें, ताकि जीवन में कभी भी कोई ऐसी समस्या है तो वो अपने लिए खड़ी हो सके। तो ऐसा बहुत जरूरी है। लास्ट मैं एक बात कहूंगी, मुझे लगता है दैट वी नीड टू क्लोज नाउ। हाँ अभी Ma'am, it is up to you. We are enjoying a lot. Yes. Okay, ma'am. We continue, ma'am. No problem. Ma'am. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक जो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, मैं इतनी सारी सेमिनार्स और इतनी सारी वर्कशॉप्स में जाती हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट की होती है, हम कहते हैं कि हमें लड़कियों को जुड़े कराटे सिखाने चाहिए, सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए, वो सब सही है, सब अच्छा है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन क्या हमें लड़कों को कुछ नहीं सिखाना चाहिए? ऐसी कुछ, मुझे लगता है कि एक संदीप रंजन जी का माइक किसी का ऑन है यहाँ पर? हाँ, माइक किसी का ऑन है? हाँ, ऐसा नहीं है क्या कि हमें एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Audible. Very well. अभी हम सोच रहे थे यहाँ कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए कि आवाज वापस आ रही है मुझे। हाँ, ऐसा कुछ तो होना चाहिए कि लड़कों को भी बताया जाए, क्योंकि वो समाज में फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। एक एज के बाद आपके लड़के से आपका नाम जाना जाएगा, तो लड़कों को ये समझाया जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो कि जब आप सड़क पर खड़े हैं तो एक महिला, एक लड़की को, आजकल जो सिनेरियो चेंज हो गया है, पहली औरतें बताती हैं कि गांव का रास्ता शहर से बहुत दूर होता था, तो एक आदमी अगर दिख जाता था तो हिम्मत बंध जाती थी कि भाई कोई खड़ा है। लेकिन आज रास्ता अकेला है, सुनसान है, डर नहीं है, पर अगर एक आदमी दिख रहा है तो डर है। तो ऐसा क्यों है सोसाइटी में? तो ये जो बच्चे हैं, बच्चे सबसे ज्यादा समझते हैं और हमें उन्हीं पर काम करना है। 5th से लेकर 6th से लेकर इट शुड बी मेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देयर करिकुलम, कि उनको ये सिखाया जाए कि सोसाइटी में उनका रोल क्या है और वो कैसे एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे की डिग्निटी को बनाए रख सकते हैं।
तो हम यहाँ सोच रहे थे मुजफ्फरनगर में कि लड़कों के लिए ऐसा कुछ शुरू करेंगे कि उनको ये सिखाया जाए दैट एज ए सोसाइटी अगर इस तरह का कोई भी क्राइम हो रहा है या आप सड़क पर खड़े हैं चार गुट बनाकर और उनको हैरेस ना किया जाए, उनको सिर्फ प्यार से बिठाकर समझाया जाए, बिकॉज दे आर ऑल्सो इन देयर टीनेज और यंग एज। अगर ऐसे कुछ बच्चे हैं तो बिल्कुल असोशली हो गए, क्रिमिनल एप्टीट्यूड वाले, लेकिन जो लड़के इधर उधर बाइक उठाकर घूमते हैं उनको कहा जाना चाहिए कि क्या तरीका होना चाहिए और कैसे आप अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए एक गलत परिस्थिति खड़ी कर रहे हैं इस तरह के बिहेवियर से, और क्या एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर है जो समाज में आपका हो। तो इसलिए जो हमारे यहाँ का समाज है, ऐसा भी बहुत है कि जो लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं या फिर आई वुड नॉट जर्नलाइज दैट, बट लैक ऑफ एजुकेशन and it plays a very important role, lack of education। कई बार और ज्यादातर समय पर जिन लोगों का the people coming from low socio-economic background and those who have lack of education and they are not from the mainstream, they do such activities more often। तो आपके इस एफर्ट को तो I would again, I hope this is enough for today. I enjoyed it, and thank you so much for calling me here on this panel to put forth my opinion. I did not say much about मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है। तो I did not say it's Preeti, please mute your mic. Preeti Tomar, please mute your mic. Preeti Tomar. I haven't talked much about the laws, what are the laws and how you can help, what all are the numbers that you can use, because I know that such information is easily available nowadays on internet and everywhere. I wanted to share my personal experience in this webinar so that we come to know about what are the basic root cause of such things और कैसे उनको अवॉइड किया जा सकता है। इसमें हर एक को सचेत रहने की ज़रूरत है। समस्या अगर आपकी बेटी वहाँ से नहीं गुजरती है, मान लीजिए रेलवे स्टेशन है और सिक्योरिटी नहीं है और आप चेक कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं दैट द गर्ल्स आर नॉट सेफ हियर, यहाँ इस तरह का इन्वायरमेंट है कि कोई लड़की रात को तो यहाँ से आ ही नहीं सकती है, तो रिपोर्ट इट टू द एडमिनिस्ट्रेशन। आप ऐसी पोजीशन में है जहाँ से आप एडमिनिस्ट्रेशन को एक लेटर लिखकर कह सकते हैं कि भाई यहाँ सिक्योरिटी का प्रबंध कराया जाए, यहाँ एक महिला पुलिस की एक जीप होनी चाहिए जो ये ध्यान रखे कि कोई भी महिला अगर देर रात भी रेलवे स्टेशन से गुजर रही है तो उसको अनसेफ फील ना हो या उसके साथ कोई गलत वाकया ना हो जाए। इसी तरह से अगर स्ट्रीट लाइट नहीं है और आपको दिखाई दे रहा है रास्ता ऐसा है जहां से स्कूल या कॉलेज की लड़कियां जाती हैं, तो आपको जरूर वहां का जो भी रिस्पॉन्सिबल आदमी हो एडमिनिस्ट्रेशन में उसको लेटर लिखकर कहना चाहिए कि यहाँ स्ट्रीट लाइट का प्रबंध होना चाहिए और यहाँ एक चेक पोस्ट भी ऐसी होनी चाहिए कि ये नोटिस में रहे कि यहाँ कोई गलत एक्टिविटी ना हो। तो इसके लिए हमें ये वेट नहीं करना चाहिए कि यहाँ कुछ हो ही उसके बाद ही कहेंगे, पहले ही कह दीजिए जो भी जितना भी आपकी कैपेसिटी में है उतना आप जरूर करें। ये भी नहीं कर सकते हैं तो अपनी गली मोहल्ले में एक ग्रुप जो बैठक करते हैं हम लोग सब अक्सर, उसमें ये जरूर इंश्योर करें कि भाई हमारे कॉलोनी में या हमारी सोसाइटी में किसी महिला के विरुद्ध कोई क्राइम ना हो, ऐसी कोई रिपोर्ट थाने तक नहीं जाए का मतलब तो ये कि हो ही नहीं, और एक क्लोजली वेब्ड हमारी सोसाइटी हो। यहाँ पर अगर कोई ऐसे सोसाइटी के बाहर या सोसाइटी के अंदर इस तरह से कोई बाइक में गाड़ियों में हॉर्न देते हुए घूम रहा है बच्चों के स्कूल आते या जाते वक्त, तो हम उसे रिपोर्ट करें, रोकें, है ना, और उसको बिना नोटिस में लाए, बिना इधर उधर ज्यादा जानकारी दिए हुए, क्योंकि लड़कियां और लड़कियों का परिवार भी मैंने देखा है कि वो ज्यादा एंटरटेन नहीं करते, उन्हीं की वजह से होता है। तो आप एज अ सोसाइटी उनको पता चले नहीं चले आपको ये करना चाहिए कि भाई इस तरह का कोई माहौल यहाँ सोसाइटी में हमारे आसपास नहीं बिगड़े। तो हम एक एक आदमी भी इस तरह का एक एपिसेंटर की तरह काम करेंगे अगर, तो बहुत सारा तो हम ही कवर कर जाएंगे, और जहां भी जिस भी महिला को जरूरत हो उसके लिए खड़े हो जाएं।
मान लीजिए बस में ही एक बार ऐसे हुआ कि एक महिला के साथ कंडक्टर ने कुछ बदसलूकी किया, क्या किया, वो बहुत बोल्ड थी, लेकिन तो वो कंडक्टर की सीट पर बैठकर और उसने उसको 2-3 गालियां दी। तो मैंने ये नोटिस किया उस समय पर, क्योंकि साइकोलॉजी बैकग्राउंड है तो दिमाग वही रहता है कि लोगों का क्या परसेप्शन है। तो मैंने ये नोटिस किया कि महिलाएं ही कह रही हैं, अरे इसका बैठना देखो, ये कैसे बोल रही है, कैसे गाली दे रही है। और फिर मैंने देखा कि वो कंडक्टर जो था बस का, वो कैसे उसे टिमिट कर रहा था कि उसने जो फावला या जो भी वेपन वो कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा रखते होंगे अपनी बस में, उसको निकाल कर ले आया और गुस्सा करने लगा। तो जब मैं बीच रास्ते में से चढ़ी थी, ये वाकया हो रहा था बहुत दूर से, नोएडा से शायद हो रहा था, और उस दिन मैं बाई चांस बस में गई किसी कारण से, क्या बात थी, मैंने फिर जब वो फावला वाला कुछ ऐसे लेकर आया तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई ये तो दिखा के डराने की जरूरत नहीं है, इसको तो रख दो, अगर कुछ नहीं किया है तो डर किस बात का लग रहा है। दूसरी बात, तुमने कुछ छेड़ा होगा, कुछ कहा होगा, तो महिला कैसे बात करेगी, गाली भी नहीं देगी क्या? अगर कुछ गलत करोगे तो गुस्से में क्या बोलेगी? और वो तो तुम्हारा बिहेवियर दिख रहा है कि तुम फॉर्मूला लेकर आए हो। पर मैंने ये देखा कि पूरी बस एक तरफ थी, सिर्फ एक कारण था, ये तो मुझे मालूम चल गया था कि उसने जरूर कुछ कहा है, लेकिन जो एक कारण था वो ये कि वो महिला, अरे ये बैठी कैसे है, ये तो गाली दे रही है, तो ये तो दिख ही रही है। तो गाली क्यों नहीं देगी जब उसके साथ अत्याचार होगा या उसके साथ उसकी डिग्निटी को हार्म पहुंचा है, तो वो गाली ही देगी, फिर वो कैसे बात करेगी? जिसने तो फावला उठा लिया लेकिन आप उसे कुछ नहीं कह रहे हो, तो दैट इज द बेसिक परसेप्शन कि आदमी फावला भी उठा ले बस में अकेली महिला पर मारने के लिए तो कोई बात नहीं है, अरे उसको बुरा कह रही है तो फावला तो उठाएगा ही। लेकिन महिला के साथ कुछ हो गया है, उसको छेड़ दिया है, कुछ भी कह दिया है और उसने 2-4 गालियां दे दी उसको, तो वो महिला तो खराब ही है, दिख नहीं रहा है गाली दे रही है। तो महिलाओं से एक्सपेक्ट किया जाता है कि बुरा हो जाए, चुन्नी ओढ़ो बिल्कुल ऐसे लेकर और घर आ जाओ चुपचाप मुंह बंद करके, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है उसको भूल जाओ, बताओ मत किसी को, तो तुम कल्चर्ड हो। लेकिन अगर तुमने आवाज उठाई और कहा नहीं भाई ये गलत कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों करोगे ऐसा, तो आप गलत हो क्योंकि आप तो भी इतनी जुबान चला रही हो। तो उस दिन मैंने महसूस किया कि एज अ सोसाइटी हम ऐसी महिला को जो आवाज उठाती है उसको साइडलाइन कर देते हैं और सारे एकजुट हो जाते हैं, इसी में कमी होगी तो अभी इतना बोल रही है। तो ऐसे में एक आदमी का भी सपोर्ट बहुत होता है। मैंने उसको जब कहा, मैंने कहा फावला तो रख दो भाई वहीं पर, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ है तो डरने की क्या बात है, ऐसे तुम्हें सजाए मौत तो होगी नहीं। और उस महिला को भी कहा, मैंने कहा तुम चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, अब नोटिस में आ गया है तो अब तुम चुप हो जाओ। इतने कहने भर से ही वो रोने लगी और उसने कहा दीदी अगर मैं ऐसे नहीं बोलूँ तो ये तो मुझे यहीं उतार देता बस से नीचे ही सड़क पर ही, और 4 गालियां और दे रहा था। तो ऐसा है, इस सब में यही हम कर सकते हैं एज अ सोसाइटी, दैट सपोर्ट अ वुमेन हु रेज अ वॉइस अगेंस्ट दीज क्राइम्स, change your perception. Somebody who is raising voice against violence, she has to put out the anger. गुस्सा तो निकलेगा ही ना, और गुस्सा निकलेगा तो भी महिला को जज किया जाता है कि गुस्से में क्या। एक महिला के पति को मार दिया घर वालों ने ही, और अब उसने केस कर दिया और उसने घर में सबको बोल दिया कि मैं इस घर का नाश करूंगी, ऐसा बोल दिया गुस्से में। तो इसी में ये कहा गया कि अरे ये लड़की तो बिल्कुल खराब है, ये तो घर का नाश करने के लिए कह रही है। और वो 30 साल की महिला जिसके पति को घर वालों ने मार दिया और उसकी 2 बेटियां हैं, शी will take some time to to adjust, to cope with the situation, to understand the situation, and she will put her anger out in some way. तो क्या कर सकती है औरत, सिर्फ बोल सकती है ना, लड़ सकती है, बोल सकती है, तो उस पे भी उसको जज किया जाता है। तो स्टॉप जजिंग वुमेन, सपोर्ट देम, हेल्प देम when they raise their voice, and change the perception that is running in the society, that if somebody raises a strong voice, some lady raises a strong voice, it means that she is like that only, like झगड़ालू है और ये तो ऐसे ही करेगी, she is not a peace lover. तो आज का बहुत अच्छा सेशन रहा, I enjoyed it thoroughly, and my best wishes to the university for organizing such awareness programs. That is a wonderful session. I hope my vision and my experience would add to the knowledge of the girls and boys that are listening to it today.
Thank you. Thank you, respected ma'am. Thank you, Tagi ma'am. Today lecture is very fruitful and enjoying everyone, our university's faculty members and all of the students. And finally, I am very thankful to you that you have provided different type of the information regarding the women's safety and girls safety. That's very nice. जैसे कि आप अभी एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छा दिया कि एक महिला बस में जा रही थी, तो ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पे महिलाएं सपोर्ट नहीं करती हैं महिलाओं को, और दैट इज वेरी ट्रू कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है। जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि बॉयज बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, अगर कहीं झगड़े की बात हो तो वो एक साथ सपोर्ट में खड़े होते हैं, लेकिन ये चीजें गर्ल्स में कहीं नहीं दिखती। दैट्स अ वेरी गुड इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल एक्टिविटीज। और हमारे से जुड़े हुए जितनी भी गर्ल्स हैं, जितनी भी वुमेन्स हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट इस समय चला रही है। जैसे कि मैम अभी बता रही थी 1090 वेरी एक्टिव लाइन्स एंड देयर आल्सो कंटिन्यूटी एंड बहुत अच्छे टाइम में रिस्पॉन्स मिलता है। और मैं जो ये 1090 की साइड है लखनऊ में जो मेन है, उस समय नवनीत सिकेरा सर इस लाइन को ऑपरेट कर रहे थे। मैं पर्सनली उनसे मिला भी था और मैंने देखा था किस तरीके से वो काम करती है, और वहां पे एक बहुत परफेक्ट टीम है जो इस चीज को ऑपरेट करती है और किस तरीके से उन बदमाशों को वो पकड़वाते हैं। तो दैट इज वेरी इफेक्टिव साइट्स, वेरी इफेक्टिव लाइन 1090। और मैं यही कहना चाहूंगा, और हमारे यहाँ पे भी जो लॉ डिपार्टमेंट है मनाड यूनिवर्सिटी में एक लीगल एड क्लिनिक करके हम लोग चलाते हैं। तो हमारे यहाँ हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो भी पीड़ित महिला है, कोई लेडीज है या गर्ल्स है, अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है तो हम 100% ये कोशिश करते हैं कि उसे लीगल एड प्रोवाइड किया जाए, उसे उसको रिस्पांस दिया जाए। किसी भी तरीके की अगर हेल्प हम लोग कर पाते हैं, चाहे वो लीगली हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे वो आपका पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, हम लोग कोशिश करते हैं। सो फाइनली वेरी thankful for you ma'am, and today lecture is very fruitful, everyone and our university participant, and finally all of the participant please on the video camera for the snapshots. So please सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, एक हम लोग स्नैपशॉट्स लेंगे उसके लिए। And finally vote for the thanks Dr. Sorvi Datta ma'am, please come on the line and please welcome everyone, and thanks for the voting. Please come Sorvi Datta ma'am, Dean of the Academics. अमित जी। Yes. हाँ, Yes, sir. मेरा आपसे एक सवाल है। माई सेल्फ डॉक्टर देवाशीष वर्मा। Yes sir, please sir, tell me. आपने एक बात कही, शायद मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। जी सर। आपने डायरेक्टली वैसे तो नहीं कि जैसे कि इन जनरल सोसाइटी में वो चलन में है कि महिला ही महिला की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन हाँ आपकी जी सर। बात का लबोलबाब कुछ ऐसा ही था। हाँ जी जी सर। जी मैं सही कह रहा हूँ आपकी बात? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। ये हम सोसाइटी में देखते हैं अक्सर, हमने देखा भी है, जैसे कि मैम ने एग्जाम्पल दिया। डॉक्टर त्यागी मैम प्लीज कम ऑन द लाइन। यस मैम। उन्होंने सही। मैं अपनी बात तीन फिंगर वाला नहीं कर रखा तुमने। अमित जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं? हाँ सर, बी कंटिन्यू सर। ओके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम महिलाओं से ये अपेक्षा क्यों करते हैं कि वो देवताओं के तुल्य व्यवहार करें? क्या दुनिया के सारे पुरुष दूसरे पुरुषों के मित्र हैं? नहीं है। अच्छा। नहीं सर, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। आप प्रोफेशन में कचहरी में जितने प्रॉपर्टी के केसेस चलते हैं उसमें से 98% पुरुष के खिलाफ लड़ रहा है। बेशक सर। तो महिलाओं को सम्मान देने और साथ देने की जिम्मेदारी से महिलाओं को आप बड़ी करिए। ये ज्यादा आवश्यक है कि इस टाइप के किसी भी घटना एक्टिविटी पे महिलाओं के पुरुष साथी, सहयोगी, सहकर्मी, परिवार के लोग उनका ज्यादा साथ दें। मैं सही कह रहा हूँ? राइट सर, बट सर जो मेरी बात थी वो एक जनरल ओपिनियन में थी कि जैसे मैम ने एग्जांपल दिया था। नहीं,
मुझे उसी जनरल थॉट को बदलना है। नहीं क्या नहीं ये महिलाओं को देवताओं के साथ उम्मीद करते हैं महिलाओं से? नहीं जब ये दुनिया के बिल्कुल सारे पुरुष नहीं है तो आप ये क्यों उम्मीद करते हैं कि दुनिया की सारी महिलाओं के मित्रों या मित्रों व्यवहार करें या उनका साथ दें? प्रॉब्लम जो है जहां है, जिस बिंदु पे है, समाधान भी तो उसी बिंदु से ढूंढना पड़ेगा। बेशक सर, लेकिन मैं- मैं मिस त्यागी मैम को बोलना चाहूंगा, प्लीज मैम कम ऑन द लाइन एंड रिस्पॉन्स अबाउट दिस क्वेश्चंस। हाँ हाँ, ये जो बात कह रहे हैं देवेश वर्मा जी वो सही कह रहे हैं। मैंने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा था वो मैंने कहा था इट वाज नॉट जस्ट फॉर वीमेन। मैंने लड़की केवल महिलाओं के लिए बात नहीं कही थी। मैंने कहा था कि एक सोशल परसेप्शन है, जनरल परसेप्शन, कि अगर कोई औरत स्ट्रांगली अपनी वॉइस रेज करती है तो उसको झगड़ालू प्रवृत्ति का माना जाता है। और ये धरातल पर है बात। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो मैंने ये नोटिस किया है। जो बात उन्होंने कही अभी वो वास्तव में सत्य है कि महिलाओं को ही महिलाओं का क्यों माना जाना चाहिए कि भाई वो उनका सपोर्ट ही करें। दो पार्टीज होंगी तो उसमें महिला पुरुष दोनों ही होंगे। लेकिन जहां पर बात और देवतुल्य की बात तो मैं 100% एग्री करती हूँ। मैं कहती हूँ कि किसी को देव बनाना, मैं जब भी ओपनिंग कहीं पर करती हूँ महिलाओं के अधिकारों के लिए तो मैं कहती हूँ ये क्या तरीका है, या तो दास या तो देवी। हमें दोनों में से कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बराबरी चाहिए। और बराबरी देने पर ही तो जोर पड़ता है। देवी बनाकर पूजा, उसमें भी आपकी बात कि आपने कहा देवी बना दिया, हमने बना दिया, तुम देवी थोड़ी थी, हम बनाकर पूज रहे हैं। और दास बनाया तो भी तुम आका हो गए। हम कह रहे हैं हमें बराबरी दो। बराबरी कैसी दो? सुनने का मौका दो, समझने का मौका दो। अभी सर ने बहुत अच्छी बात कही। जो उदाहरण इन्होंने दिया वो उदाहरण दिया प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी के विवाद में और जो महिलाओं के प्रति जो जघन्य अपराध होते हैं उसमें तो बहुत फर्क है। एक जगह आपको इमोशनली रेप्ट किया जा रहा है, एक जगह पूरा परिवार या समाज एक तरफ हो गया, रेप हो रहा है। रेप और प्रॉपर्टी मिल जाएंगे क्या? तो जिस समय पर एक महिला को मानसिक, शारीरिक, मुझे कहना चाहिए साइकोलॉजिकल, इमोशनल, शी गो थ्रू एवरी काइंड ऑफ, एक क्राइम हो जाए एक महिला के प्रति, फिर उसके प्रति सारे क्राइम हैं। कैसे? अगर आप उसको पीट रहे हैं, इकोनॉमिकली भी वायलेंट कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली भी तोड़ रहे हैं, समाज से भी टूट जाती है ऐसी महिला। कौन सुन रहा है? किसके पास जाकर बैठेगी? कितना फ्रेंड सर्कल होगा? तो उसके प्रति सब तरह का टॉर्चरस बिहेवियर वो बियर करती है। तो एक प्रॉपर्टी का विवाद होना और एक आदमी की अस्मिता पर बात आ जाना, उसको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक हर प्रकार से तोड़ देना, ये दोनों बहुत अलग है। प्रॉपर्टी का मैटर है, ये ह्यूमन राइट्स का मैटर है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका मॉरल बूस्टिंग करना। एक महिला के साथ आप खड़े होकर 2 बार ये कह देंगे ना, जब किसी महिला से हम मिलते हैं जो वास्तव में पीड़ित हो, वास्तव में पीड़ित महिला तो चिल्लाना, कोर्ट में जाना अच्छा ही नहीं समझती। वही तो पीड़ित है जो जा नहीं पा रही है। जो लड़ सकती है उसको पहले ही रोक देती है, जो उसके साथ होने वाला होता है पहली लड़ाई में खत्म कर देती है। ये जो दब्बू होती है ना और संस्कारी बनती हैं बहुत ज्यादा, ये बर्दाश्त करती हैं बहुत दूर तक और इनके खिलाफ होते हैं फिर बड़े बड़े क्राइम। इन्हें हाथ पकड़ के घर के बाहर निकाला जाता है। जो तेज है वो तो घर के अंदर रहकर लड़ेगी, तुम बाहर जाओगे। तो ऐसी जो महिलाएं हैं दब्बू और पीड़ित, जब उनके पास खड़े होकर ये कहते हैं ना, अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, सब बहुत अच्छा होगा, देखना हम हैं तुम्हारे साथ। ये क्या कहा मैंने? 2 सेंटेंस कहे, लेकिन ये 2 सेंटेंस हो सकता है उसके पूरे दिन की थकान और चिंता को मिटा दे। तो ऐसा व्यक्ति जिसके साथ इस तरह से कुछ हो रहा है, जो उसकी अस्मिता पर बात आ रही है, उसकी आइडेंटिटी पर बात आ रही है, ऐसे व्यक्ति के साथ और कोई प्रॉपर्टी के विवाद, इन दोनों में तो बहुत फर्क है। ऐसे व्यक्ति के साथ समाज का खड़ा होना बहुत जरूरी है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मुझे एक्नॉलेज करो, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। I have the equal right to live like you, to enjoy life, to have all the joys of life. So these are 2 different prospects, प्रॉपर्टी का और ये। लेकिन हाँ, ये बात सच है इनकी, ये 100% सच है कि महिलाओं को क्यों सोचा जाए कि भाई महिलाएं खड़ी हो। इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मैं महिलाओं में जवाब दे सकती हूँ कि आज आप नहीं खड़ी हो रही हो तो कल को उस लड़की की जगह आपके घर परिवार में से या आप खुद भी हो सकती हो। तो हम एक समाज है, अगर आज आप मेरे लिए खड़ी नहीं होंगी, कल मैं आपके लिए खड़ी नहीं होंगी।
महिलाओं की गलती क्या है? महिलाओं की गलती यही है कि वो अपने आप को एक समाज नहीं मानती है। यूनियन होती है, कंडक्टर्स की भी यूनियन है, ऑटो वालों की यूनियन है, दूध बेचते हैं उनकी यूनियन है, स्कूल कॉलेज वालों की यूनियन है। महिलाओं की यूनियन देखी है कहीं पर संगठित? इन्होंने छोटे छोटे डिपार्टमेंट बना रखे हैं, एनजीओ बना रखे हैं, जिसमें ये जाती है साड़ी पहनकर और एक फीता काट दिया, एक मोमबत्ती जला दी। ये यूनियन नहीं हुआ करती। ये अपने आप को एक समाज की तरह ले ही नहीं रही है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, स्वर्ण से हो, ओबीसी से हो, एससी एसटी से हो, महिला महिला है और उसके प्रति अत्याचार हर जगह एक जैसा है। फॉर्म बदल जाती है सिर्फ। तो ऐसी महिलाओं के साथ महिलाओं का खड़ा होना मोरल ग्राउंड पर जरूरी है भाई, और कुछ नहीं कर सकते हो। खड़े होकर तो कह दो भाई गलत हो रहा है तुम्हारे साथ में, हम तुम्हारे साथ है, ऐसा कैसे होने देंगे, कहना पड़ेगा, नहीं तो कल आप भी तैयार नहीं है। जो बात वो कह रहे हैं वैसे सही है बिल्कुल। इक्वालिटी के मामले में भाई क्यों सोचना कि महिला के बराबर में खड़ी होकर उसका फेवर ही करे। दुश्मन भी हो सकती है, दो पार्टी हो सकती है और होती है, ये बात बिल्कुल सच है उनकी। पर मैंने जो प्रोस्पेक्ट में कहा था वो परसेप्शन, तो मैंने कहा था वो परसेप्शन जो सोसाइटी में रन कर रहा है कि भाई तेज बोल रही, बात आगे रख रही है, लड़ रही है, अधिकारों के लिए लड़ रही है, तो झगड़ालू है, उसे तो शांति चाहिए, ऐसा है। Thank you, ma'am. Thanks a lot. Anybody has any query related regarding this webinar, this topic? So please raise your questions. Anyone? नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन मैं मैडम की एक बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। बात हमें अपने घर से Right, sir. Right, sir. वायलेंस के अगेंस्ट अगर हमें कोई भी लैंडमार्क करना है, कोई वॉइस देवेश जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आवाज थोड़ा। मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपकी एक बात से बिल्कुल 100% एग्री हूँ कि कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को, अपने घर के पुरुषों को सेंसिटाइज करने की जरूरत है महिलाओं के साथ, महिलाओं के लिए। देवाशीष जी, आप सुन रहे हैं मुझे? बंद कर लिया मैंने। अच्छा मैडम, एक क्वेश्चन मेरा है कि जरा आप बताइए, आपके अभी देवाशीष जी इस बात पर थोड़ा सा डिसएग्री हो रहे थे, एग्री भी थे किसी पर, डिसएग्री भी हो रहे थे। एक परिवार है, उसमें एक बेटी है, एक बेटा है, बेटे की भी शादी हो गई, बेटी की भी शादी हो गई। बेटी घर आई हुई है, शादी के बाद में वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, तुमने जो दामाद ढूंढा है वो इतना अच्छा है कि मेरे हर काम करता है, जहाँ मुझे जरूरत पड़ती है मेरे बर्तन भी साफ करा देता है, झाड़ू भी लगा देता है, सारे काम करता है। तो वो ऊपर ईश्वर से हाथ जोड़ के कहती है कि ऐसा दामाद सबको दे, बड़े उससे कि ईश्वर मैंने बहुत अच्छे कर्म करे होंगे जो मुझे ऐसा दामाद दिया। अब सेम थिंग उसी का लड़का यही काम करता है कि अपनी बीवी का सारा हाथ बटाता है, लेकिन उससे कहती है कि बीवी का गुलाम हो जा और इसके पल्लू में घुसा जा। तो एक औरत, उसके दो आइडिया कैसे हो सकते हैं, एक अपने घर के लिए और एक बेटी के लिए? भाई सेम थिंग, स्टेटमेंट सेम, सिचुएशन सेम, कंडीशन सेम, लेकिन व्यूज अलग अलग। वाई? ये तो सब जगह है। इसमें देखिए, हर एक पर तो जर्नलाइज नहीं कर सकते, हर एक व्यक्ति वैसा नहीं है। तो अगर किसी के ऐसी ओपिनियन है तो दिक्कत तो यहीं से बननी शुरू होती है, जहाँ पर टू फेस, जहाँ लोग होंगे, जहाँ पर ये मुझे कहना चाहिए ये हिपोक्रेसी होगी, वहीं तो समस्याएं बनेंगी। और ये दो चेहरे हर जगह, हर
एक फील्ड में आपको लोगों के मिल जाएंगे, महिलाओं में ज्यादा है। ये जो आपने कहा है ये प्रश्न मुझसे कम है, जो अभी प्रश्न देवाशीष जी ने किया था उनके लिए ये उत्तर ज्यादा है कि महिलाओं को कहाँ महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए। ये डबल फेस नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ हुआ तो गलत हुआ, दूसरे के साथ हुआ तो आप चुप्पी लगा जाइए, उन्हीं में गलती होगी। तो इस तरह का जो व्यवहार है वास्तव में तो यही समस्या का कारण है महिलाओं के लिए। और एक दूसरा सबसे एग्जाम- बड़ी मैडम एक दूसरा एग्जाम्पल सुन लीजिए। हापुड़ का केस है, एक शादी करके एक महिला अपने बेटे की लाख लेके आती है, बेटा एमडी है, दूसरा छोटा बेटा भी एमडी है, बहू एमडी लेके आती है। 6 महीने शादी को होते हैं, बहुत खुश है कि मुझे बहू एमडी मिल गई, बहुत सोबर मिल गई, बहुत संस्कारी मिल गई, सब कुछ हो गया। 6 महीने के बाद में लड़का रोड एक्सीडेंट में खत्म हो जाता है और वही बहू जिसकी तारीफ करते करते उसका मुंह नहीं थकता था, लोग कहते हैं कि अपने छोटे बेटे के लिए इसे ले ले, चूंकि तू ही तो सेलेक्ट करके लाई है, सब कुछ खाई है, बोले कि किसी कीमत पे इसको अपने घर नहीं ले सकती, इसके पहरे खराब हैं, इसको अपने छोटे बेटे के साथ दूसरी शादी नहीं करने दूंगी मैं। वाई? सर यही इसके तो लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? नहीं, यहाँ पर अभी यही तो सोसाइटी का रोल है कि समाज को एक मापदंड तय करना पड़ेगा। भाई 10 लोग 12 लोग जाएंगे और कहेंगे कि ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि समाज की बेटी हो जाती है। जो बेटे का कोई नहीं रहता वो बेटी तो समाज की है, पर समाज आजकल ऐसा हो गया है कि नहीं इकट्ठा होकर ऐसी बातों में अपनी वॉइस रेज कर रहा है और सारी समस्या यहीं से आ रही है क्योंकि घर के अंदर ही कैसे। एक्चुअली समाज ने खूब प्रेशराइज किया, खूब समझाने की कोशिश कर दी, उस सास ने ये कह दी कि किसी भी कीमत पे आई विल नॉट एक्सेप्ट। हाँ, उसके पीछे कारण है ना सर। कारण क्या है? डॉवरी भी है। दूसरी शादी होगी, दहेज आएगा, नई उमंग आएगी, नई लड़की, नई रिश्तेदारी, इसको नहीं रखूंगी, ये तो ऑलरेडी आ गई है। तो ऐसा लड़कियों के साथ तभी तो कहा कि एजुकेशन वेपन है। हमेशा हर कोई आपको सहायता नहीं कर सकता है। कई जगह ऐसी है जहां लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं चलेगा, कई जगह ऐसी है जहां आप बहुत लंबी कानूनी कार्यवाही या फिर कोर्ट केस नहीं लड़ सकती, क्योंकि आपका तो जीवन दांव पे लग जाएगा। 10-12 साल के कोर्ट केस ही लड़ती रहोगी। तो जहां ये सब फ्लॉप हो जाता है, कोई रास्ता नहीं निकलता है, वहां लड़कियों के लिए सिर्फ एक एजुकेशन ऐसा रास्ता है जो उनको आगे होप दे सकते हैं। जैसे वो लड़की आप बता रहे हैं एमडी है। एजुकेशन तो एमडी थी, वो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। हाँ, एमडी है तो कम से कम उसके पास ये होप है कि मुझे आगे चल के कोई जीवन तो मिल जाएगा, अच्छा कोई जीवन साथी और अच्छा मिलेगा। ये भी अच्छी बात नहीं है कि बड़ा मरा तो छोटे को बिठा दिया। क्यों बिठा दिया? वो लड़की इंडिविजुअल है, उसे डिसाइड करने दीजिए उसको कहाँ शादी करनी। क्या पता उसको एक परिवार पसंद नहीं हो। और एक चीज और है जो मैं समझती हूँ ये कि अगर ऐसी परसेप्शन उस लड़की के प्रति उनके मन में है तो वो आगे उसका जीवन दुर्भर नहीं करेंगे क्या? तो ये भी एक गलत हमें धारणा। भाई लड़की से पूछिए, पहले तो उसको समय दीजिए 6 महीने का, 1 साल का, और फिर उसे ये कहिए कि आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है सर, शायद माइक आपका शी वाज ऑलरेडी इंटरेस्टेड, बट इन केस सास जो नहीं चाहती थी। एक तो लड़कों को क्यों जरूरी है शिक्षित करना? लड़के तो है जो सैंडविच है। परिवार को एक लड़का संभाल सकता है। मैं महिला हूं लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ आपको, घर को, माँ बाप को मैनेज करना और बीवी को मैनेज करना, ये काम तो लड़का ही करेगा। और दोनों अलग अलग जगह से आए, दोनों तार उसी से जुड़े हुए हैं। तो अगर वो मजबूत नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, वो ब्लंट नहीं होगा, वो सही को सही गलत को गलत नहीं कहेगा बिना किसी हिचकिचाहट के, तो कैसे चलेगा घर? अब जैसे ये लड़का है, इस केस में अगर लड़का है कहीं नहीं मम्मी मैं इसी से शादी करूंगा, तो बात सॉल्व हो गई। लड़के कैसे बना रहे हैं आजकल आप? मम्माज बॉय समाज में बाहर तो बैठते नहीं आदमियों के पास, ज्यादातर पढ़ाई में वही माँ के चारों तरफ घूमते हैं। सॉरी टू से, लेकिन उन्हें पता ही नहीं। जब बाहर जो लड़का निकलेगा, समाज में बैठेगा, उसे पता है क्या बात सही है क्या गलत है, क्या डिसीजन तुम्हें लेना चाहिए। तो फिर यहाँ भी यही प्रॉब्लम हो गई कि माँ जो टीचर थी उसने गलत पढ़ाया, वहां भी लेडी रेस्पॉन्सिबल हो गई। नहीं सर, समाज में दोनों रिस्पॉन्सिबल नहीं, है। आपने कहा कि वो माँ के इर्द गिर्द घूमेगा, माँ ही जैसा पढ़ाएगी तो माँ ही रेस्पॉन्सिबल होगी। सोशल कई बार सोशल नॉर्म्स जो है ना समाज में, आपके लिए पर्सनली कोई चीज ठीक नहीं है, लेकिन सामाजिक तरह से अगर देखा जाए हर एक प्रोस्पेक्ट से,
तो क्या चीज सही रहेगी? आप मेरे मुंह से ये तो मत कहलवाइए कि महिलाओं का ही दोष होता है, पुरुषों का भी दोष होता है। वो लड़का जो बैठा है, बड़ा है, एमडी है, वो क्यों नहीं कह सकता भाई मैं इसको अपनाने के लिए तैयार हूँ और ये इसी घर में रहेगी? आजकल ये जो सामाजिक में एक विघटन आ रहा है, ये आ रहा है जब से जॉइंट फैमिलीज खत्म हुई है। मैं जॉइंट फैमिलीज की पक्षधर हूँ। जॉइंट फैमिलीज जब होती हैं तब वहां एक आदमी डिसीजन नहीं लेता, एक औरत डिसीजन नहीं लेती, एक आदमी डिसीजन नहीं लेता। घर के 4 बड़े आदमी सोच समझ कर, लेवल ऑफ टॉलरेंस भी बढ़ता है। लेवल ऑफ टॉलरेंस बढ़ता है। और अब ये मोनोपोली नहीं होती कि जो मैं चाह रही हूँ वही होगा। अब एक केस आया, माँ की नहीं बनती थी बहू के साथ, बेटे की बनती थी, आए जी तलाक कराइए, मेरी इससे बंद नहीं बनती है। वकील साहब बहुत तेज थे, और वकील साहब भी, मुझे जो एग्जाम्पल बताया ये अभी अनफॉर्चुनेटली कोविड में संजीव अत्री जी जो एक्सपायर हुए हैं, डीएवी कॉलेज उनके भाई का है यहाँ पर, वो बहुत अच्छे लॉयर रहे, क्रिमिनल। उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई एक बात तो सुनो, लड़के की बहू से बन रही है, आपकी नहीं बन रही है, तो आप ही क्यों अलग नहीं हो जाते? लड़के और बहू रह लेंगे। ससुर को कहा आप अपनी वाइफ को डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? समस्या तो आपकी भी उतनी ही है। लड़की को कैसे डिवोर्स दिलवा दोगे? डिवोर्स तो बहुत आसान हो गया है आजकल, क्योंकि सबकी जेब में 10-15 लाख रुपए हैं। आप तो हर साल चेंज कर सकते हो लड़कियां। तो ये खैर बहुत एक सेशन में पूरी होने वाली बात नहीं है, लेकिन समस्याएं तो बहुत हैं और परिवारों से ही चल रही हैं। और टॉलरेंस ये बहुत बड़ा इशू है लड़कियों के स्तर पे भी, और ससुराल वालों को ही नहीं कह सकते, हमेशा हर स्तर पे। एक जो चीज मैं और नोटिस कर रही हूँ वो ये कि हमारा लड़कियों को पालने का तरीका तो बदल गया है। हम लड़कियों को लड़कों की जैसी एजुकेशन, लड़कों के जैसा खाना, रहन सहन, फ्रीडम दे रहे हैं, लेकिन बहुएं अभी भी हमें 1980s की चाहिए। तो जो लड़कियां इस तरह से इक्वालिटी के साथ आ रही हैं, इक्वल स्टेटस लेकर आते हैं, वो फिर उनके रहने सहने में, उनके बात करने में, उसमें फर्क होगा। दूसरा, ज्यादा लड़कियों के साथ मुझे लगता है कि ये जो एक परसेप्शन है कि बहुएं ऐसी ही हों, चुप रहें, दूर रहें, कम बोलें, वो थोड़ा थोड़ा सा अब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेच्योर लड़कियां आ रही हैं, एज अच्छी होती है, पढ़ी लिखी है, सोशल सर्कल है, उनकी एक परसेप्शन है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक तरह का उनका पर्सनालिटी ऑलरेडी बन गया है। तो फिर उसको समझने में और उसको एक्सेप्ट करने में होल हार्टेडनेस होनी चाहिए कि शी इज नाउ आवर फैमिली मेंबर, whatever she is, what kind of personality she has, we have to accept her। क्योंकि सबको पता है कि इसका एक सब्स्टिट्यूट है कि डिवोर्स ले लो, ये चली जाएगी, दूसरी आ जाएगी। तो वो भी एक कारण है, दोनों के दिमाग में, दोनों ही पक्षों के दिमाग में। अच्छा, इसको I have a counseling session। Thank you, ma'am. Thanks a lot regarding information. And finally, I am also welcome. Thanks for the board vote, Dr. Sorvi Datta, ma'am, Dean of Academic. So please come on the line, ma'am, please. Sorvi Datta, ma'am. Hello, audible, sir? Yes, ma'am. Audible, ma'am. Is it audible? Please. Yes, ma'am. Audible very well. Be continue. This आवाज आ रही है सर? हाँ, yes, ma'am. आ रही है, आवाज आ रही है. Please be continue. Yes, ma'am. Please be continue. So with this, we move to the end of this webinar. It is a matter of pleasure for me to deliver vote of thanks for today's webinar on women empowerment and different aspects of women's safety. First of all, I would like to extend my heartfelt gratitude to our key speaker, Mrs. Samriddhi Tyagi ma'am, for giving an excellent speech on the topic of women's empowerment and safety. It makes the webinar meaningful and interesting. Thank you, ma'am. Thank you very much for sharing your views regarding we need to change the social structure and the point of view of the society to change the condition of the woman. Precaution is always better than cure, and women need to prepare to face any type of problem.
really enjoy your speech, ma'am. I personally really enjoy your speech. We had a lot of things to learn from your talk today. Next, I would like to extend my gratitude to our Honorable VC, Dr. Mohammed Javed sir, to take out time, be scheduled to grace today's event. Sir, your words are always inspiration and matter of encouragement for us. I'd also like to thank to our Pro VC and Mr. Kanadip due to some reason could not join the webinar today, but he is the torchbearer of this program. A special thanks to the organizing of Women Grievance Cell and the chairperson of the Women Grievance Cell and coordinator, Dr. Soma Das, of today's webinar, Dr. Soma Das, for the effort that made to make it a big success. Thanks to Mr. Chaudhary for his beautiful anchoring. Thank you. My Thank hearty you, ma'am. thanks to IT cells and media cells for their technical support for the program. At last, I would like to express my gratitude and tons of thanks to all the deans, HODs, faculty members, members of the admin group of Monad University and other organizations, everyone who had joined us from the other side of the screen for the immense support and coordination. Thank you very much. Heartfelt thanks to the students for their active participation. Thank you all of you, and have a very nice day. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Sarvidata, ma'am. So thanks for the vote and all of the participate. Thank you all my Monad University family. So thank you again, Tyagi ma'am. So we are going on left today webinar. Thanks to all. Thank you, sir. Thank you to all. Welcome, ma'am. Welcome.